Shailesh Pawar, and in this session we are going to talk about singleton class and related topics. So I'm going to start sharing my screen now. So now we are going to have a look at a special case of classes here, something called as singleton class. अब क्वेश्चन ये आता है कि exactly singleton class का मतलब क्या होगा? See, singleton class is going to be such a class जिसका हम लोग सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट टू इज गोइंग टू बी अ प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. सिंगलटन क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसका हम लोग सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा होगा. तो जब भी इस क्लास के किसी भी मेथड को कॉल करना, एक ही ऑब्जेक्ट सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा, उन्हें उस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उस क्लास के सारी मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा. अदरवाइज जनरली ऐसा होता है कि बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यू कीवर्ड हम लोग जितने चाहे उतने एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज देयर इज स्पेस अवेलेबल ऑन हीप. बट as far as singleton classes are concerned, the scenario is going to be that we will be able to create only one object of this class, which also is going to be a pre-created one. उस pre-created object को ही हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कोड में. So now let's see how to create such kind of class in Java. We'll go to File, New Project. Left hand side से Java select किया, right hand side से Java application. I'll click on Next. So project name, I'm going to provide the project name as say Singleton Demo. This is the name of the project I'm going to give. And then I don't want main class to be created, so I'll just click on Finish. Okay, so we'll go to the default package node. I'm going to right click on it, and then it's going to ask me for the name of the class. So suppose we are going to provide the name of the class as ABC, and we'll just click on Finish. So now we will have to understand the use case here. तो use case क्या है, condition क्या है? एक ऐसा class create करो जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, that too has to be a pre-created object. User of the class must never be able to create the object of the class by his or her own. User class का जो भी यूजर होगा या जो भी डेवलपर है, डेवलपर को उस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, वो भी प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, और डेवलपर खुद जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता. सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे 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 टाइप का क्लास कैसे क्रिएट किया जा सके. सो दिस इज गोइंग टू बी अ complicated topic, so I would expect you to pay great attention to this. So the first thing that we are going to do here is I'm going to take one data member x, private int x. ये मैंने एक data member ले लिया abc class के लिए. Okay, and एक और class लेके आ जाते हैं यहाँ पे. So let's name this class as my main class. See, this is going to be such a class which is going to contain main method for us. So let's put main method in it. Okay. Now, जैसा मैंने कहा था, I don't want the user to create, or say developer to create object of class ABC. So generally, how would you create object of class ABC? You would have to say, you would have to make use of the name class. Then you would make use of the reference, then you will say new, and you will again say class followed by a pair of brackets. This is the way in which we create class of any object of any class in case of Java. But जैसा मैंने कहा था, I don't want user or say developer to be able to create the object of the class in this way. मैं नहीं चाहता कि डेवलपर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, उसे प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ही मिले और उसी ऑब्जेक्ट के साथ वो काम करे. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर लेके आना है, मतलब अलाउ नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ. सो लेट्स डू वन थिंग. देखते एक काम करते हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू कम अप विथ
a parameterized constructor here. As you can see, मैंने इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करके रखा हुआ है. मैंने इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करके रखा हूं. द मोमेंट आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दिस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एज प्राइवेट, इससे होगा ये, देख लो. अब यहाँ पे mymain.java में अगर मैं यहाँ पे, ऐसा लग सकता है तुम लोगों की पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है सर, आपने पैरामीटर्स पास नहीं किए इसलिए ये एरर दे रहा. तो मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ. पैरामीटर पास करने के बाद भी as you can see there red line is appearing which means there is a compile time error. और देखते compile time error क्या है, क्या लिख के आ रहे हैं वहां पे. ABC ब्रैकेट में int, मतलब ABC का जो कंस्ट्रक्टर है it has private access in ABC and we all know अगर if any member of class has been declared as private we would never be able to access that member from outside the class. तो जब हम लोग ये ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, we know that whenever we are going to create object, constructor is going to get called. तो ऑब्जेक्ट ABC क्लास के बाहर बन रहा है ना mymain क्लास के अंदर, और ABC क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है वो तो प्राइवेट है. तो क्लास के बाहर से हम लोग प्राइवेट चीजों को एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते. तो मतलब एक स्टेप तो मैंने अचीव कर ली यहाँ पे, दैट डेवलपर won't be able to create any object of ABC class inside mymain class by making use of new keyword here. ये पॉइंट तो क्लियर है. बट मैंने क्या बोला था कि एक प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए. आंसर इज यस, जरूर प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट तो जरूर होना चाहिए यहाँ पे. तो प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिर वो प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? एक काम कर लेते हैं हम, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस. नाउ शुड देयर बी एनी कंपाइल टाइम एरर हियर? तो आंसर इज नो, नॉट एट ऑल. यहाँ पे कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है. अब क्वेश्चन आता है क्यों कोई कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं है? सर यहाँ पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पे हो रहा है? एबीसी क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर से तो हम लोग प्राइवेट चीजों को एक्सेस कर ही सकते हैं. सो दिस शुड बी परफेक्टली फाइन. और ये दिख रहा है यहाँ पे कोई भी कंपाइल टाइम एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा. ओके, मैंने ये काम कर दिया. बट नाउ क्वेश्चन कम्स अप, हाउ विल दिस ऑब्जेक्ट be made available to the outside world? इस ऑब्जेक्ट को हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड में अवेलेबल कैसे कराएंगे? अब तुम लोग में से कोई ऐसा कहेगा कि सर एक काम करो ना, आप इसको पब्लिक डिक्लेयर कर दो. बट द फर्स्ट थिंग which is wrong here in declaring this as public would be that you would be sacrificing the security of your data member, first point. and दूसरा पॉइंट, भले ही मैं इसे पब्लिक डिक्लेयर कर दूं, फिर भी इसे क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैंने कंस्ट्रक्टर को तो प्राइवेट डिक्लेयर करके रखा है, मतलब मैं क्लास के बाहर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता. तो एज सच वो ओबीजे मुझे बाहर अवेलेबल नहीं होगा, व्हिच सिंपली मींस कि आई नीड टू हैव सच अ मेथड इनसाइड क्लास एबीसी जो इस एबीसी क्लास के प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को आउटसाइड वर्ल्ड को अवेलेबल करा दे. ठीक है, तो एक काम करते हैं. I am going to create one method here. Suppose मैंने उस मेथड का नाम लिख दिया get instance. Instance मतलब ऑब्जेक्ट, तो get instance नाम लिख दिया. You can give any name, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो. But now question comes up कि इसका return type क्या होगा? See, what is expected from this get instance method? इस get instance method से क्या expected है हम लोगों को कि ये मेथड ABC क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे. तो what is going to be the return type of this method? Obviously इस मेथड का रिटर्न टाइप होने वाला है ABC, बिकॉज ये मेथड एबीसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी. एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट मैं यहाँ पे बोल दूंगा रिटर्न ओबीसी. तो अब मेरे पास एबीसी क्लास के अंदर एक ऐसी मेथड अवेलेबल है विद द नेम गेट इंस्टेंस. एक ऐसी मेथड अवेलेबल है जो मुझे इस एबीसी क्लास के प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी. और एक बार वो ऑब्जेक्ट मिल गया तो इस क्लास के अंदर एक और मेथड लेके आ जाते हैं हम लोग, पब्लिक वॉइड से शो. जिस मेथड के थ्रू हम लोग x की वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे, x डेटा मेमोरी की वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे. ठीक है, इतना पॉइंट यहां तक आई गेस इट शुड बी क्लियर फॉर यू पीपल. नाउ चलो, मतलब गेट इंस्टेंस इज द मेथड ऑफ एबीसी क्लास विच वी नीड टू कॉल
तब जाके हम लोगों को ये एबीसी क्लास का प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो चलो ठीक है, हम माइमेन क्लास में जाते हैं और इस गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करने की कोशिश करते हैं। इस गेट इंस्टेंस मेथड पब्लिक इन नेचर, तो आंसर इज यस। तो माइमेन क्लास में तो ये मेथड अवेलेबल होगी, मतलब एक्सेसिबल तो होगी, बट इन ऑर्डर टू एक्सेस पब्लिक मेथड ऑल्सो, अगेन मेरे पास क्या होना जरूरी है, मेरे पास एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। और क्या मेरे पास एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है? तो आंसर इज नो, मेरे पास एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं इस गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल कैसे करूंगा? तो मुझे एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बट एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि एबीसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करके रखा हुआ है, तो इट इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करें। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो फर्स्ट कोडिंग का लेक्चर देखा था, वेयर आई हैड एक्सप्लेन्ड यू एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, उसका नॉलेज पिक्चर में आ जाएगा, उसका नॉलेज जरूरी होगा। मैंने एक चीज बोली थी तुम लोगों को वहां पे, दैट इफ यू वांट टू एक्सेस any member of your class and if you don't have object of the class with you, what you can do is you can declare that member as static। और अगर तुम लोगों ने किसी भी मेंबर को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए तुम्हारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट होने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। गेट इंस्टेंस मेथड को मुझे कॉल करना है, बट उसे कॉल करने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्या मेरे पास एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है? तो आंसर इज नो। तो मैं इस गेट इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने इस गेट इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया, नाउ दिस मेथड कैन बी कॉल्ड यूजिंग ओनली द नेम ऑफ द क्लास। मुझे उसे कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये बात अचीव कर ली, बट जैसे ही मैंने गेट इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर किया है, as you can see there, the compile time error is being displayed on screen and that too on this statement return obj। अब देखते हैं वो एरर क्या है। have a look at the screen now। non-static variable obj cannot be referenced from a static context। now we need to understand this very important point here। एक चीज हमेशा याद रखना, स्टैटिक डेटा मेंबर को नॉन स्टैटिक मेथड एक्सेस कर सकती है, बट स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। इफ यू हैव स्टैटिक मेथड विथ यू, इट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास। एक स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो गेट इंस्टेंस मेथड में हम लोग किसे रिटर्न कर रहे हैं? ओबीजे। ओबीजे एबीसी क्लास का मेंबर है। गेट इंस्टेंस मेथड स्टैटिक है, तो क्या ओबीजे स्टैटिक है? तो आंसर इज नो, ओबीजे तो स्टैटिक है ही नहीं। और अगर ओबीजे स्टैटिक नहीं है तो हम लोग क्या ओबीजे को एक्सेस कर पाएंगे गेट इंस्टेंस मेथड के अंदर? तो आंसर इज नो। इसका मतलब ये है कि मुझे ओबीजे को भी जाके स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। द मोमेंट आई हैव डन दिस, एज यू कैन सी देयर, अब यहाँ पे कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है। अब हम लोग जा सकते हैं माय मेन में। मुझे एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं बोलूंगा एबीसी ref1 इक्वल टू, कौन दे रहा है मुझे वो ऑब्जेक्ट? गेट इंस्टेंस मेथड, और वो स्टैटिक है तो उसे मैं एबीसी क्लास के नाम से ही कॉल कर सकता हूँ। एंड एज यू कैन सी देयर, जैसे ही मैं गेट इंस्टेंस को कॉल करूंगा, गेट इंस्टेंस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न मी दिस ओबीजे ऑब्जेक्ट। एंड ओबीजे ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है या किसका रेफरेंस है? एबीसी क्लास का रेफरेंस है। इट इज रिप्रेजेंटिंग एबीसी क्लास ऑब्जेक्ट, एंड वही एबीसी क्लास ऑब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पे चाहिए था। दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर। एंड देन यूजिंग दिस रेफरेंस वी कैन ऑलवेज कॉल द शो मेथड। ठीक है ना? चलो, मुझे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या ये बोलना सही होगा कि मुझे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए? तो आंसर इज नो, बिकॉज आर एबीसी क्लास इज अ सिंगलटन क्लास। उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। कैसे? अगेन वी विल हैव टू कॉल द सेम गेट इंस्टेंस मेथड। फिर से हमें उस सेम गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। और अगर उसी गेट इंस्टेंस मेथड को हम लोग फिर से कॉल कर रहे हैं तो क्या रिटर्न होने वाला है? वहां से वही ओबीजे रेफरेंस या वही ओबीजे ऑब्जेक्ट रिटर्न होने वाला है जो थोड़ी देर पहले रिटर्न हुआ था। मींस अब अगर मैं ref2.show भी करूं तो भी याद रखना, द मेथड इज गोइंग टू गेट कॉल्ड वाया द सेम ऑब्जेक्ट।
दिखने के लिए रेफरेंसेस अलग अलग दिख रहे हैं, बट बोथ ऑफ these references are referring to the same object. So now if I will run this, as expected, for both the references the value of x would be displayed as 34. Why so? Because ये दोनों references ref1 and ref2 actually same object को ही refer कर रहे हैं. So this point is very very important here. ये बहुत important point है. And now yes, we can say that the class ABC is nothing but a singleton class here, because we are able to access only one object of this class. We have not created that object by ourselves. It was the pre-created object. Which was made available to us by this get instance method. So I just hope that you people have understood the concept of singleton class here. This concept is very very important, and singleton class is one of the design patterns that are followed in case of Java. There are many more design patterns. You people can always search for those design patterns and have a look at them. Singleton is one of them. ये उनमें से एक डिजाइन पैटर्न यहाँ पे है. So now with this thing in mind, now let's have a look at the next topic that we are going to see in this session. So I'm going to close this project now. Now the next topic that we are going to see is the concept of array of objects. See, we have already seen the concept of arrays. Arrays are nothing but collection of elements that belong to the same type. तो हम लोग इंटीजर एरे बनाते हैं तो उसमें इंटीजर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल इंटीजर एलिमेंट्स. डबल एरे बनाते हैं उसमें मल्टीपल डबल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं हम लोग. अगर मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलूं तो मतलब क्या होगा? एक ऐसा एरे जिसमें हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे. लेट्स सी हाउ टू यूज दैट और हाउ टू क्रिएट सच काइंड ऑफ एरे इन जावा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट हियर. लेफ्ट हैंड साइड में जावा, राइट हैंड साइड में जावा एप्लीकेशन. Just click on next. I'm going to name it as array obj demo. The project. I don't want main class to be created. I'll just click on finish. To come to this part, again we'll right click on default package. We are going to come up with a class here. Say we want to create a class to represent real world entity student. स्टूडेंट नाम की रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक क्लास बनाने वाले हम लोग यहाँ पे. एंड नाउ इनसाइड दिस क्लास वी आर गोइंग टू कम अप विद सर्टेन डेटा मेंबर्स. से प्राइवेट इंट रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम. सो दीज आर द टू एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर हियर. ये दो एट्रीब्यूट्स है जिनको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे. नाउ सपोज वी वांट कंस्ट्रक्टर टू बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट क्लास. सपोज हम लोग स्टूडेंट क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हैं. तो अब आईडी का बेनिफिट देखते हैं. यहाँ पे वी जस्ट हैव टू प्रेस ऑल्ट इंसर्ट. यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं वेदर वी वांट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो सपोज मैं यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जनरेट कर रहा हूँ. You can see that this keyword का यूज करके रखा हुआ है. And then the data members roll number and name have been declared as private. ठीक है, इन डेटा मेंबर्स को हम लोगों ने प्राइवेट डिक्लेयर करके रखा है यहाँ पे. तो would we be able to display the values of those data members from outside the class? तो आंसर इज नो. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे. I'll press alt insert and I'll go to getter and setter. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग दोनों डेटा मेंबर्स के लिए गेटर एंड सेटर मेथड्स बनाने वाले हैं. गेटर मेथड नाम से ही समझ में आना चाहिए. ये एक ऐसी मेथड होगी जो नेम की वैल्यू को रिटर्न करेगी, रोल नंबर की वैल्यू को रिटर्न करेगी. सेटर मेथड नाम से ही समझ में आना चाहिए. ये एक ऐसी मेथड होने वाली है जो नेम में वैल्यू असाइन करेगी, रोल नंबर में वैल्यू असाइन करेगी. सो विल जस्ट क्लिक ऑन जनरेट हियर एंड एज यू कैन सी दैट यहाँ पे मेथड्स बन चुके हैं. गेट रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न कर रही है ये मेथड. सेट रोल नंबर की वैल्यू असाइन करने के लिए. गेट नेम
नेम डेटा मेंबर की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, और सेट नेम डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करने के लिए. So the class has been created now with a non-parameterized constructor and with the concept of getter and setter methods. अब देखते हैं कि हम लोग इसको array of objects के लिए कैसे use कर सकते हैं. Go to default package, right click, new. I'm going to come up with new Java class. Say we are going to name this class as mymin, and we'll just click on finish. यहाँ पे आ जाते. Click class mymin. We are going to come up with main methods. Main method यहाँ पे आ जाते हैं. So now I want such an array to be created which will be able to hold multiple objects of student class. एक ऐसा array create करना चाहता हूँ जिसके अंदर हम लोग student class के multiple objects को store कर पाए. तो how do we create array in case of Java? Suppose मुझे अगर integer array create करना है तो कैसे create करते हैं हम लोग? सबसे पहले type of the array, square brackets, then reference for the array equal to, then new, and then again type of the array, and then we specify the size of the array. This is the way in which we create array in case of Java. Now here I want the array to be able to store objects of student class. So what should be the type of the array here? Obviously student should be the type of the array. Then array reference, you can give any array reference. Say I said ARR1, and then I'll say new, and then we'll again say student, and then suppose I want this array to be able to store 3 student class objects. So now what we have to understand here is we have not created object of student class yet. We have created an array object that has ability to store 3 student class objects. ये समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को. ओके, तो क्या हम लोगों ने एरे के अंदर कोई एलिमेंट्स पुट किए? तो आंसर इज नो. हम लोगों ने एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट्स अभी तक तो पुट नहीं किए. तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द एरे. तो विल से ARR ऑफ 0. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ARR ऑफ 0? इसका मतलब है कि हम लोग फर्स्ट एरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एंड देन उसमें आई वुड लाइक टू पुट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास. तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग? विल से न्यू, विल से स्टूडेंट, एंड देन से मैंने रोल नंबर यहाँ पे पास कर दिया 33, एंड नेम आई हैव पास्ड एज से ABC. So the first student object got stored at 0th location or 0th index in the array. Now I'll say ARR of 1 equal to new. Again we'll create second student object here. Provide the roll number as 34. We'll provide the name as say QR. And then we'll say ARR of 2, where we are going to put the third student class object. Let's put the roll number as 35. Name as 11. So look at the way in which I have stored 3 objects of student class into this array. So the objects have been stored. Now what we can always do is we can take out those objects and call their methods. So what we will do here is I'll simply say system.println details of all students are, and then I'm going to come up with, now it's up to you. You may make use of for each loop here, or you can make use of traditional for loop also. I'm going to make use of for each loop here. So from where are you going to take out the elements? We are going to take out the elements from ARR. ARR is of what type? Student type, means what type of elements are going to come out of ARR? Student type के elements come ARR से बाहर आने वाले. तो I'll just do this. मैंने लिखा student S colon ARR. Student S colon ARR मतलब क्या? ARR में से एक एक student object बाहर आएगा, S में assign होगा, and then
will be displaying the ID and roll number, sorry, roll number and name of each student on screen. So we are just going to call getter method here. First call get roll number, and then we'll call get name. This is how we are going to write our code. Now let's do one thing. Let's run this program and let's see whether we are able to see the data. As you can see there, details of all students are, the values of data members of each object are being displayed on screen. So in this particular program, we have seen that it is possible to store objects also into an array, how to declare such kind of array and how to put elements into it. And then one very, very important concept that we have seen here is, we have seen the concept of getter and setter methods. So getter and setter methods become useful in cases where the data members of the object have been declared as private, जहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर करके रखा हुआ है, एंड देन उन डेटा मेंबर्स की वैल्यूज अगर मुझे क्लास के बाहर डिस्प्ले करनी है, क्लास के बाहर से उन डेटा मेंबर्स के वैल्यूज को एक्सेस करना है या वैल्यू सेट करनी है, तो उसके लिए जो पब्लिक मेथड्स हम लोग बनाएंगे, है ना, उनको गेटर एंड सेटर मेथड्स बोला जाएगा. गेटर मेथड, या as the name suggests, will start with the word get, and setter method, as the name suggests, will start with the method with the word set. Get word will be followed by the name of the data member. Again, set word will be followed by the name of the data member. So get roll number will return the value of data member, and set roll number will be used to assign the value into the data member. So this is very, very important point here. So I just hope that you people have understood the concept of singleton class and array of objects both. So I'm going to stop sharing the screen now. In our next sessions, we'll be coming up with more interesting topics from Java. Thank you.